Good evening, dear children. Today I am going to make you understand about the new chapter of mathematics, that is polynomial. It is the second chapter in our NCERT book of CBSE, and the first chapter was number system, which one we have finished, and polynomial. Please solve, and you can ask me your doubts. Today's work is to complete 2.1 exercise and 2.2 exercise. Two exercises I am giving to you today because these are very easy exercises, but it has so many concepts because 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4, these four exercises basing on the concept, the fundamental concepts of algebra, that is what is term, what is coefficient, like term, unlike term, which one is polynomial, which is not a polynomial, what is the degree. These all things we are going to find out. Next two exercises are basing on remainder and factor theorem. Next two exercises are basing on algebraic identities. They are very important. Basing on algebraic identities, there are so many levels are there in R.D. Sharma book of CBSE. So please learn this. So what are the doubts you are having? We'll be posting our videos, but if you have any doubt, please ask to me. Come forward and ask. What is polynomial, children? Polynomial means any algebraic expression which is comprised of both variables or constants or any one of them and separated with a plus or minus sign, and that may be more than two terms, is known as polynomial. Its general formula is a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 dot 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 a n. Last one is because x to the power n minus n is 0, so x to the power 0 is 1 only, so a n. This is called algebraic expression. This is known as algebraic expression or called the general formula of the polynomial. Now here it comes a0, a1, a2, a3 till an are known as constants, and x is a variable. Only one variable is there. That can have two variables, that can have three variables. That's not an issue for the polynomial. But here which one I had given to example, that is like this. Let me show you and let me make you understand from there and the note which one I have written for you. Here is the guy's general form is a0 x over n. Some more example of the polynomials are y square plus y plus 2 is a polynomial also. Ax plus by plus c is equal to c that so on I have written, but x plus by plus c is also a polynomial in two variable x and y are the two variables. बट यदि एग्जाम्पल 4 देखिए आप लोग y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल 3 लिखा गया है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि नीचे हमारा वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए. वेरिएबल शुड नॉट ऑक्यूपाई इन द डिनोमिनेटर. प्लीज रिमेंबर, इफ इट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर देन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. Polynomial basing on terms, it is of four types, that is monomial, binomial, trinomial, and last fourth one is polynomial itself. And depending upon the degrees also it is of many types. Number one is monomial, basing upon the terms. Monomial having only one term, that may be a constant, जैसे कि x लिखा गया वेरिएबल है, 1 is a constant, 5 is the constant. Constant means what children? Those value is fixed, जो चेंज नहीं हो सकता जिसका वैल्यू, उसे बोलते हैं constant. जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ये वेरिएबल चेंज, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकता. जैसे कि एक्स स्क्वायर 5x y, ये वैल्यू चेंज हो सकता है. एक जगह में x का वैल्यू 5 आया होगा, दूसरी जगह में x का वैल्यू 7 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू वेरी हो रहा है. वेरी मतलब बदल रहा है, इसलिए हम बोलते हैं उसे वेरिएबल. बाइनोमियल. What is binomial? An algebraic expression which has only two terms, x plus 5, 2x minus 9, 3x plus 7. Like these are the examples of the binomials having two terms. Trinomial, it has got three terms children, जैसे कि x plus y minus 3. थ्री टर्म्स है नहीं बच्चों. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. देखिए x एक टर्म हुआ, प्लस के बाद y है इसलिए y और एक टर्म हुआ, माइनस के बाद 3 है इसलिए 3 भी और एक टर्म हुआ. That is three terms are there. So if the question is coming, write an example of trinomial. So you can do like this. You can write any of your example, but constant को सिर्फ मत लिखिए. जैसे कि 5 plus 4 plus 3, यहाँ पे 3 terms हुआ नहीं, क्योंकि 5 plus 4 9 plus 3 12. 12 is only one term, सिर्फ एक ही टर्म हो जाएगा वहाँ पे. यदि आप लोग लाइक टर्म्स को लिख के ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा वो ऐड हो जाएगा. यहाँ पे अनलाइक टर्म्स है, x एंड y बोथ आर different variables, so they are unlike terms. Let me make you like an unlike terms. More than 3 terms are known as polynomial. X plus by plus cz plus d are the example.
नेक्स्ट कम्स आर द पॉलिनोमियल्स डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। डिग्री को बेस करके फर्स्ट वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल चिल्ड्रन। लीनियर मीन्स पॉलिनोमियल व्हिच हैज ओनली वन डिग्री, जैसे कि 4x + 5, x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है बाय डिफॉल्ट। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स 2, क्वाड मीन्स 2 आएगा। ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, 3x² + 4x + 5, x का पावर कितना है बच्चों, 2 है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 4x² + 7, x का पावर 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल सिमिलरली पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री। 3 मत देखिए 4x³ + 3x² + 2x + 7, x का पावर 3 है, x का पावर नेक्स्ट टर्म में 2 है, देन उसका बाद 1 है, देन उसके बाद 7 कांस्टेंट मतलब x का पावर 0 है। वहाँ पे जो हाईएस्ट है उसे लेते हैं हम लोग, उससे बोलते हैं डिग्री उसका, उसके हिसाब से हमारा डिटरमाइन किया जाता है पॉलिनोमियल कौन सा टाइप का डिग्री है। दिस इज क्यूबिक, 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 4 डिग्री, ax to power 4 + bx³ + 6² + dx + c। बाई क्वाड्रेटिक 4 है यहाँ पे। टर्म्स उसके बाद आया डेफिनेशन फॉर द टर्म्स चिल्ड्रन। टर्म्स क्या है, इट मे बी कांस्टेंट, इट मे बी वेरिएबल और बोथ कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एज अ टर्म, एंड टर्म्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग प्लस और माइनस साइन। जैसे कि देखो 5 इज ए कांस्टेंट, इज ए टर्म, x इज अ वेरिएबल। Now combine 3x, it is one term only, one term and it is a term also। 2y², देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों मिलके है। This is called terms। Like terms and non-like terms are the two types of the terms। Like means देखो बच्चों, यदि वेरिएबल सेम होगा, वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट कुछ भी हो तो भी चलेगा, लाइक टर्म्स उसे बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ लिटरल मीन्स वेरिएबल, लिटरल फैक्टर 4x, 7x, 9x, 13x ये भी बोला जा सकता है। और एक एग्जाम्पल मैं ये दे दूंगा आप लोगों को, 5x²y, -1/2 x²y, 7x²y। यहाँ पे क्या देख रहे हो, x²y हर जगह में रहता है, सिर्फ उसका जो कांस्टेंट टर्म है वही बदल रहा है, बट x²y इज रिमेनिंग सेम। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स। ऑन लाइक यदि अलग अलग वेरिएबल होगा, देखिए जैसे कि 4x², x² आ वेरिएबल, 2xy, xy अलग वेरिएबल आ गया। यहाँ पर हम लोग उसे ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बट लाइक टर्म्स को कर सकते हैं। 4x + 7x कितना है बच्चों, 11x, ऐसे ऐड किया जा सकता है। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब है इट्स ए फैक्टर विच इज मल्टीप्लाइड टू द गिवन टर्म। गिवन टर्म क्या है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, x इज गिवन टर्म इन 3xyz। x का कोफिशिएंट क्या है 3xyz में, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 3xyz में, x को छोड़ दो बाकी सब 3yz। आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xyz इज 3yz। मतलब जो पूछा गया, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है उससे काट देना है, उससे निकाल देना है, जो वो टर्म से वो वाला मोनोमियल से बाकी सबको लिख देना है, इसका कोफिशिएंट। Next comes degree children। It is the highest power raised to the variable in an algebraic expression is called as a degree। highest power जैसे कि 2x² + 3x² + 7, x का पावर हाइस्ट है जो कि 4 है, इसलिए उसे डिग्री बोला गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3xyz, xyz के ऊपर मैं सर्कल किया हूँ, +4x² + 7। दिस इज अनदर के algebraic का एक्सप्रेशन। xyz, x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, वो मल्टीप्लाइड है इसलिए पावर सभी ऐड होगा, 3 हुआ पावर। 4x², x का पावर 2 है तो हाइस्ट नहीं है, इसलिए 3xyz का डिग्री 3 है तो पूरा टर्म का डिग्री 3 ही होगा। ये कहा हमारे डिग्री के बाद। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, 13 / 3 हाउ मच बच्चों, 3 4 12, रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन 4 आया, रिमाइंडर 1 आया, मतलब क्या हुआ ना, जो डिविडेंड है 13 = 3 × 4, डिविजर इंटू क्वेश्चन 12 प्लस रिमाइंडर, 12 + 1 13। जैसे ये एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल में भी हम लोग वही दिखाएंगे। यदि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग f(x) दिखाते हैं, उससे जो डिवाइड करता है उसे g(x) डिविजर में, एंड q(x) मीन्स कोशिएंट which is we are obtaining after during division, एंड जो डिवाइड होने के बाद छूट जाता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, यदि f(x) इज अ डिविडेंड g(x) into q(x) plus r रिमाइंडर। नेक्स्ट पार्ट जैसे देखिए, ये रहा हमारा जीरोस। जीरोस क्या है, f(x) = सपोज 3x² - 4x - 4, लेट x = 2। सोचो कि x का वैल्यू 2 हम लोग डालेंगे, f मैंने 2 डाल दिया, 3 × 2² - 4 × 2 - 4, 3 × 2² 2² मीन्स 4, 3 4 12 -8 - 4 is -12, 12 - 12 0, तो 2 को 0 बोला जाएगा। मतलब जो
वैल्यू उस वेरिएबल में डालने के बाद हमारा पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होता है। 0 मीन्स सॉल्यूशन आ जाता है, तभी हमारा उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्लीज रिमेंबर, जीरोस मीन्स सॉल्यूशन फॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सॉल्यूशन फॉर द पॉलिनोमियल। यदि मैं एफ ऑफ 2 नहीं डाल के और कुछ वैल्यू डालता हमारा वैल्यू 0 नहीं आता, क्योंकि देखियो 3x² एक्स का पावर 2 है, मतलब 2 वैल्यू इसका आएगा, 2 जीरोस आएंगे। उसके बाद जो भी वैल्यू हम लोग उसके जगह पे x के जगह पे डालेंगे तो वैल्यू का आंसर 0 बिल्कुल नहीं आएगा। उससे बोलते हैं दे आर नॉट जीरोस, दे आर नॉट गिविंग सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई। देन कम्स रिमाइंडर थ्योरम चिल्ड्रन। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर का मतलब होता है विदाउट डिवीजन ना करके तुम लोग डिवीजन ना करके रिमाइंडर निकालोगे। जैसे कि ये थ्योरम हर जगह में लिखना पड़ेगा। बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन एफ ऑफ एक्स मतलब डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इज द डिविजर, देन द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, मतलब एक्स माइनस ए जो यहाँ पे रहा, ये जो एक्स माइनस ए रहा इज इक्वल टू 0 करो उसे, तो एफ एक्स इक्वल टू ए आएगा। एक्स का जो ए आएगा वो एफ ऑफ एक्स के अंदर डालना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए सपोज मैं लेता हूँ x² + 2x + 3, जी एफ एक्स जो कि डिवाइड करेगा उसे x + 2 लिया मैंने। यदि x + 2 = 0 हुआ, x इक्वल मच +2 राइट से जाने से -2 होगा, -2 को सब्स्टिट्यूट करो x जगह में, एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2² + 2 × -2 + 3, -2² 4, 2 × -2 -4 + 3 इक्वल टू 3 आया आंसर। तो 3 इज द रिमाइंडर। देखो ये जैसे डिवीजन ना करके 3 लिखा है, हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो भी हमारा वैल्यू 3 आएगा। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 इज गिविंग आज x × x। देखो क्वेश्चन वाला x को देखो, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, रुकिए। तो देखो यहाँ पे x + 2 × x, ये रहा हमारा डिविजन। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x² आएगा, x × x, x², x × 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × x 2x, माइनस क्या आ गया 0 आया, 2x - 2x 0 हुआ, 3 ही बचा, 3 इज अ रिमाइंडर। जैसे कि मैं वहाँ पे रिमाइंडर 3 निकाला था, यहाँ पे भी हमारा 3 ही आ रहा है। नेक्स्ट कम्स फैक्टर थ्योरम बच्चों। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, तो x + 1 को हम लोग फैक्टर बोलेंगे, तब x + 1 को तभी हम लोग फैक्टर बोल पाएंगे, इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ -a, x जगह में x + a = 0 कीजिए तो x = -a आएगा, एफ ऑफ -a = 0 आना चाहिए। मतलब रिमाइंडर यदि 0 आया तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बिकम ए फैक्टर। एफ ऑफ x इक्वल देखिए x² - 5x + 4, जी ऑफ x = x - 1 = 0, x = +1 आया। एफ ऑफ 1 डाल दीजिए इस जगह में, 1² - 5 × 1 + 4, 1² is 1, 1 + 4 is 5, -5 रहा, 5 - 5 0, यस। तो यहाँ पे x - 1 इज अ फैक्टर हुआ इसका, x² - 5x + 4 का। जनरल हम लोग रिवीजन करेंगे, देखिए आप लोग x² - 5x + 4 डिवाइडेड बाई x - 1, x × x x², x × 4 -4x आएगा। x × x जो पहला टर्म है, पहला टर्म दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x × x x², x × -1 -x। आप लोग जानते हो डिवीजन, हम लोग डिवीजन में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑपोजिट साइन आप लोग डालना पड़ेगा, क्योंकि x² - x² है तो ये +x² था, माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस। यहाँ पे माइनस इन माइनस प्लस हो जाता है, प्लस होता है, -5x + x इज -4x, +4 उतरा नीचे। क्या मल्टीप्लाई करने से x के साथ -4x आएगा, -4 × x -4x, -4 × -1 +4, तो ये प्लस रहेगा माइनस से, इसलिए +4x -4x 0, ये -4 + 4 0 आया, तो रिमाइंडर इज 0 एंड एक्यूज how much x - 4 is the answer. Now it comes about algebraic identities. Now it comes about algebraic identities. There are so many identities under it. लगभग 25 identities are there. But I have written to you 70. Those are important and those are using throughout the Art Summer book also. Number 1 is a + b whole square. You know it. A² + 2ab + b²
a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. If you add them, a plus b whole square plus a minus b whole square is equal to, you will get 2 of a square plus b square. And if you subtract them, a plus b whole square minus a minus b whole square, then that will give you plus 4ab. You can do with a plus 1 by a whole square. I have written all the formulas and I am sending it through the notes to you all. Okay, fine. Then similarly, a plus b whole cube is equal to how much? Now a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, or you can also say a cube plus 3ab of a plus b plus b cube. Similarly, a minus b whole cube, and these all are the importance. A plus b plus c whole square, similarly a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. If you go for the next one, the a cube minus b cube and a cube plus b cube is also there. A cube plus b cube is equal to a plus b of a square minus ab plus b square, or also you can say a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab of a plus b. These formulas are having some proofs also, but you can learn or you can do the proofs by multiplying a plus b whole cube means a plus b into a plus b, जो आंसर आएगा उसके साथ a plus b आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ सकता है उसमें भी, वैसे कुछ भी सुनिए. The last formula is important. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. These are the so many formulas. I'm going to show you that it's also, आप लोग देख सकते हो ये formulas यहाँ पे भी है. There are 17 formulas I have written for you. These all of the formulas you can record and you can write it down, and you can practice for your exam, for your test also. Now let us go for the next exercise 2.1. Let me show the question to you first. 2.1 का questions क्या क्या है मैं आप लोग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग पढ़ा दूंगा वो numbers. देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 पूछा गया है, which of the following expression is a polynomial. I'll make you understand. 2 number, write the coefficient of x square in each of the following. x square coefficient क्या क्या है वो भी लिखेंगे. Give one example each of binomial degree 35 and monomial degree 100 वो भी. And 4 number डिग्री पूछा गया है, and 5 number कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल पूछा गया है बेसिंग ऑन डिग्रीज. लेट मी शो यू इट्स आंसर्स इन द नोटबुक. देखो नंबर 1 पूछा गया था कि इज दैट ए पॉलिनोमियल और नॉट. व्हाट इज हैपनिंग, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, पावर भी डिग्री है, सब तो वेरिएबल ऊपर ही है. सो इट्स ए पॉलिनोमियल, इट्स ए पॉलिनोमियल. नंबर 2 1 नंबर 3 देखिए बच्चों, 3 रूट ओवर t प्लस t रूट 2 इट्स ऑल्सो पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स ए पॉलिनोमियल. क्योंकि ये पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल ही है t डिग्री 1 एंड डिग्री 1/2. ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल. क्यों बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे देखो नीचे है. सिंस वेरिएबल इज देयर द डिनोमिनेटर, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. आई सेड यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म. एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1, तो इट्स वेरिएबल कोफिशिएंट इज 1 ओनली. यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाइड है π/2, तो आंसर इज π/2. कोफिशिएंट इज π/2 ऑफ एक्स स्क्वायर. इसमें पूछा गया था बच्चों, गिव एन एग्जाम्पल 3 नंबर ऑफ एग्जाम्पल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स जिसका डिग्री 35 हो, एक्स टू द पावर 35 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 2 जो भी लिखो तो भी चलेगा. एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक्स पावर 100 लिखो और वाई पावर 100 लिखो चलेगा कोई भी. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा 4 नंबर. डिग्री मीन्स आई सेड, आप लोग देखिए वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री इज 3. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पूछा गया कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है. देखो पावर 2 है, डिग्री 2, डिग्री 2 मीन्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक. डिग्री 1 हो तो लिनियर. कॉन्सेप्ट में आप लोग ढूंढ सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कॉन्सेप्ट को थोड़ा बाइट कीजिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ में देखिए एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 3, इज व्हिच वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा सॉल्व कीजिएगा
fast exercise. I am sending the question also to you. Thank you. Have a good day. Bye bye.